Great morning, students. Great morning students. In the last video we discussed about registers in parallel when we are going to connect two or more resistors in the parallel side the same point they are said to be connected in parallel. According to law of combination of resistance in parallel, the reciprocal of combined resistance of any number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of individual resistances. When a number of resistors are connected in parallel, then the combined resistance is then the smallest individual resistance, and its value will be depend on the resistance. In this, you can see here the current will be flow in the different range. There are three resistors R1, R2, R3, and they are connected with the parallel to each other. In case of this, the current range will be different with respect to the different conductors. Now जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की वो आपकी सेम रहेगी सभी रजिस्टर्स में, बट जो रेजिस्टेंस है वो सभी कंडक्टर्स में अलग अलग होगा और उनका करंट का फ्लो भी आपका अलग अलग रहेगा. इस मीन वी कैन से कि जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट. एंड यदि आपका उनमें से एक भी ख़राब हो जाता है तो क्या है, इट विल नॉट अफेक्ट द अदर अप्लाइंसेस. बट इन केस ऑफ सीरीज में क्या होता है कि यदि आपका एक अप्लाइंस ख़राब हो जाता है इट विल डैमेज देन इट विल अफेक्ट टू अदर्स आल्सो. सो वी शुड अरेंज दैम इन पैरेलल रादर देन इन सीरीज. सो वी हैव डिस्कस इट इन द previous videos. Now today we will try to discuss about the electricity effects. That's the electricity effects we know very well. That's the heating effect of the electric current. When electricity passes through a high resistance wire like a nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. जब भी हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें से आपका क्या होता है, वो वायर आपकी हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है. और वो वायर आपकी हीट क्यों होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल energy will be changed into work and heat energy, because 90% of electrical energy will be changed into work and 10% of energy will be changed into the heat. So it would not be directly changed into the electrical energy. Now you can say ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट होता है जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टर अपने आप ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद वेन एवर वी आर गोइंग टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट. सो नाउ यू कैन सी हियर there are the heating effects of the electric current. Electric current as we have discussed कि जो electric current होता है आपका that was discovered by James Prescott Joule. James Prescott Joule, he was a scientist, English physicist and braver. Bean Scott, Selford and Joule studied the nature of the heat and discovered its relationship with the mechanical work. मीन्स कि जूल्स ने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टडी किया कितना वर्क हमारा कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है और कितने जूल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर सकता है. सो द साइड ड्राइव यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. दैट्स वाई जो आपका जूल था उसके नेम पर ही इसकी एनर्जी की यूनिट को जूल में रखा गया. अब यदि हम बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका रिलेशन बेसिकली करंट के थ्रू रजिस्टर में और हीट डिस्पोटेड होता है. दिस इज कॉल्ड द जूल्स फर्स्ट लॉ. जूल्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो आपकी हीट होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द बेसिस ऑफ द इट्स हीटिंग प्रोड्यूस. नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू ए
conductor, it produces a resistance R, and the potential difference through the resistance is equal to the potential V. The charge Q is going to do the work and its potential difference will be V into में Q, means potential difference into में charge. So you can say कि जितना भी आपका potential difference होगा, it will rise due to the production of the electric current in it, and the charge that is produced due to the effect of the potential with respect to the current, it would be changed according to the time. So power can be changed into potential into current into time. This is our first equation. We can drive the equation with respect to power, with respect to time, and finally the power will be current square and time taken and its resistance of the wire. So you can say heat produced in wire is directly proportional to the स्केयर ऑफ द करंट, मीन्स करंट का यदि हम स्केयर कर देते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टाइम फॉर विच करंट इज पास, जितने टाइम के लिए हम करंट पास करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हीट का प्रोडक्शन डिपेंड करता है. मीन्स हीट इज गोइंग टू प्रोड्यूस थ्रू एनी कंडक्टर, इट विल डिपेंड ऑन द स्केयर ऑफ द करंट, जितना करंट हमने पास किया है, जितना रेजिस्टेंस हमारा राइज हुआ है, और साथ में जितना हमारा टाइम, जितने टाइम के लिए हमने करंट को पास किया है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी. तो दैट वाज द लॉ दैट वाज डिसाइड बाय द जूल्स. तो इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं. नाउ when we talk about the other things about the heating effect, यदि हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में और बातें करें तो हम देखेंगे कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो आपके हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में राइज होता है. जितना करंट जिसमें फ्लो करेगा उतना ही रेजिस्टेंस उसमें राइज करता है, और उसके बेस पर ही हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होता है. नाउ what are the application of heating effect of the electric current? There are many practical application of heating effects. For example, and ये आपका लाइट बल्ब होता है, glows when the filament is heated and it is effect of the current, so दैट इज़ द ग्लोज. यही आपका क्या है, बल्ब आपका तभी ग्लो करता है जब उसमें करंट पैदा होता है, और करंट के कारण ही वो हीटअप होता है, गर्म होता है. तो इसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन, जब कोई बॉडी आपकी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती है और उसी को एमिट करती है. नाउ इलेक्ट्रिक स्टोव जो होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं. सोल्डरिंग आयरन्स जो होती हैं या कार्टेज हीटर होते हैं वो भी आप इस पर काम करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वगैरह होते हैं वो भी आपके करंट फ्लो पर डिपेंड करते हैं कि इनफ हीट यदि जनरेट हो जाएगी तो फ्यूज़ की वायर आपकी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होते हैं, दे वर्क ओवर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. एंड वेपराइजेशन आपके जो होते हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, वेजिटेबल ग्लिसरीन है, ये सब आपके इस पे डिपेंड करते हैं. नाउ ऑल देयर्स ऑफ थर्मीटर आर यूज इन दिस. सो दैट्स ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Next arrangement is the parallel arrangement. In this we are going to connect the resistor with respect to the parallel. So you can say in this series voltage will be constant and current will be changed with respect to the voltage and resistance equivalence. So here thanks, we have cleared all the topics. Thank you and have a nice